આપણે જ્યારે નાના હતા ત્યારે આપણામાંથી ઘણા બધા લોકોને વાર્તાઓ સાંભળવી બહુ જ ગમતી નહીં, એટલી કે એ આપણા દિવસનો રૂટીનનો એક ભાગ બની જતો. હું જ્યારે નાનો હતો ત્યારે મારું પણ આવું જ રૂટીન હતું. રાત્રે જમ્યા પછી દાદી જોડે બેસીને એક નવી વાર્તા સાંભળવી અને સાંભળતા સાંભળતા ઊંઘી જવાનું. મારી દાદી મને અહેમદાબાદના અલગ અલગ કિસ્સાઓ સંભળાવતા. કઈ જગ્યાએ શું હતું, જગ્યાઓના ઇતિહાસ, રાજપાટના કિસ્સાઓ, એવી ઘણી બધી વાર્તાઓ મને કહેતા. એટલે હંમેશા અહેમદાબાદ મને વાર્તાઓની ચોપડી જેવું લાગે. એવું જ સમજો કે હું જ્યારે આ શહેરના રસ્તાઓ પર ચાલું કે જગ્યાને જોઉં, મને એનો ઇતિહાસ એક વાર્તાની જેમ દેખાય છે. એવું લાગે જાણે હું ઇતિહાસની ચોપડીમાં ચાલી રહ્યો છું અને એ જ વાર્તા જીવી રહ્યો છું. મને હંમેશાથી આ શહેર, એના કલ્ચર અને હેરિટેજ વિશે જાણવામાં અને એ સમજવામાં સખત રસ હતો. હું કંઈક ના કંઈક મારી રીતે વાંચતો જ રહેતો. અને અત્યારે મારા આ જ નોલેજને વધારવા અને શહેરને વધારે સારી રીતે સમજવાનો ચાન્સ મને મળ્યો રેડિયો નઝરિયા, નથી નોનસેન્સ અને બ્રિટિશ કાઉન્સિલના સહયોગથી શહેરનામા દ્વારા. હવે આપણે જ્યારે હેરિટેજની વાત કરીએ છીએ તો આપણા દિમાગમાં શું આવે છે? ચાલો अहमदाबादના લોકોથી જ સાંભળીએ. मेरे हिसाब से मैं जब भी अहमदाबाद सिटी के रिलेटेड माइंड में जो फर्स्ट थॉट आता है वो मेरा ओल्ड सिटी, अहमदाबाद गेट्स, ये सब उनका अहमदाबाद कल्चर और लोगों का टाइप सब माइंड में आता है. सिद्दी सैयदनी जाड़ी, सरखेज रोज़ा, शालम सरकारनी दरगाह. भी मैं अहमदाबाद हेरिटेज ये वर्ड सुनती हूँ तो मेरे दिमाग में दो ही चीज़ें आती है. एक तो मॉस्क बहुत सारी और एक પોલ હાઉસીસ. મોટા ભાગના લોકો પ્રમાણે હેરિટેજ એટલે જૂની બિલ્ડિંગો જ છે. પણ શું હેરિટેજ એ બિલ્ડિંગની દિવાલો સુધી જ સીમિત છે? શું હેરિટેજ અહેમદાબાદની પોલ અને એમના ચબૂતરાઓમાં જ છે? ચાલો જાણીએ આર્કિટેક્ટ અર્બન પ્લાનર પિયુષ પંડ્યાથી, જે આ પ્રોજેક્ટમાં મારા મેન્ટર પણ હતા. मेरा नाम पीयूष पंड्या है और मैं आर्किटेक्ट और अर्बन प्लानर हूँ. यानी कि मैं शहर की इमारतों और शहर को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए काम करता हूँ. जब हम शहर की विरासत की बात करते हैं तो वो निश्चित रूप से शहर की इमारतों तक सीमित नहीं होता. वो शहर की आत्मा की तरह शहर की स्मृतियों में बसी हुई है, उसकी यादों से जुड़ी हुई है, लोगों के रहन सहन, पहनावे, खान पान से जुड़ी हुई है. इसे ही हम इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज यानी कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कहते हैं. अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी कि जिसे हम छू नहीं सकते हैं, हम सिर्फ उन्हें महसूस कर सकते हैं या फिर हम उसे सिर्फ गा सकते हैं, सुन सकते हैं. એટલે હેરિટેજ બને છે કલ્ચરથી, કલ્ચર બને છે લોકોથી. અને આ શહેરના લોકો, એમનું કલ્ચર એ પણ આપણો વારસો જ છે, જેને ઇનટેન્જિબલ કલ્ચરલ હેરિટેજ કહેવાય. આ ઇનટેન્જિબલ કલ્ચરલ હેરિટેજને જાણવા, એને ડોક્યુમેન્ટ કરી સાચવવા અને એ બીજા લોકો સુધી પહોંચાડવા માટેના આ પ્રયાસનું નામ છે શહેરનામા. શહેરનામાના આ ભાગમાં આજે હું એવા જ એક સમુદાયની વાત કરવાનો છું, જે આપણા જોડે જ રહે છે, આપણી આજુબાજુ જ હોય છે, જે વર્ષોથી આ શહેરનો એક હિસ્સો છે. કોઈક મિનિસ્ટર છે તો કોઈક સફાઈ કર્મચારી તો કોઈક બિઝનેસ કરે છે, પણ આપણને એમના વિશે કંઈ જ ખબર નથી. હું વાત કરું છું મેઘવાલ સમુદાયની. હવે જ્યારે મેં આ નામ સાંભળ્યું ત્યારે મને પ્રશ્ન થયો કે શું આ નામ પાછળ કંઈક ઇતિહાસ છે? કારણ કે નામમાં બહુ વાર સમુદાયનું મૂળ અને એનો ઇતિહાસ છુપાયેલો હોય છે. તો ચાલો જાણીએ હિતેશથી, જે પોતે મેઘવાલ કમ્યુનિટીથી છે. मेघवाल जाति का नाम मेघ ऋषि से पड़ा. मेघवाल पूरा समुदाय है जिसके पहले मेघ ऋषि थे, उनके नाम से मेघ वहाँ से लिया गया और मेघवाल जाति का नाम वहीं से पड़ा. આ વિશે જ્યારે બીજા લોકોથી પૂછ્યું ત્યારે મને ખબર પડી કે એવું પણ માનવામાં આવે છે કે વીર મેઘમાયા એ સમુદાય માટેના મૂળભૂત માન સન્માન મેળવવા પોતાના પ્રાણનું બલિદાન આપ્યું, એટલે આ સમુદાયને મેઘવાલ કહેવાય છે. અને હજુ એક વાર્તા છે જેના પ્રમાણે મેઘઋષિની પુત્રી મેઘરીના નામ ઉપરથી આ નામ આવ્યું છે. જેટલો ઇન્ટરેસ્ટિંગ નામ પાછળનો ઇતિહાસ છે, એટલો જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ આ સમુદાયનો ઇતિહાસ પણ છે. મેઘવાલોનો કોઈ લિખિત ઇતિહાસ નથી. એમનો ઇતિહાસ તો પેઢી દર પેઢી મૌખિક રીતે જ આગળ વધે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે મેઘવાલો સિંધુ નદી પાસેથી આવ્યા હતા અને પછી એ જ નદી પાસેથી પશ્ચિમ ભારતીય ક્ષેત્રમાં ધીરે ધીરે મહારાષ્ટ્ર સુધી ફેલાયા. હાલમાં મેઘવાલો પાકિસ્તાનના કેટલાક પ્રદેશો અને ભારતના ઉત્તર અને પશ્ચિમ ક્ષેત્રોમાં જોવા મળે છે. આમના વિશે થોડુંક ઇન્ટરનેટ પર સર્ચ કરતાં મારી નજર એક ફોટો ઉપર પડી, જેમાં રણ વચ્ચે સુંદર રંગો અને પેટર્નથી સજાયેલું એક ઘર હતું. અમિતાભ બચ્ચનની એડ છે ને, કચ્છ નહીં દેખા તો કુછ નહીં દેખા, એ તમે જોઈ હશે તો તમને ખ્યાલ હશે. એમાં જેવા ઘર બતાવે ને એવા જ. આ ઘરો ગોળ આકારમાં પ્લાન કરેલા હોય અને માટીથી બને છે. બહાર રણમાં કડકડતો તડકો અને ગરમી, પણ અંદર જાઓ તો કોઈ એસી કે પંખા વગર જ મસ્ત ઠંડુ ફીલ થાય એવા ઘર હોય આ, જેને ભૂંગા કહેવાય.
એમના ઉપર એ સમુદાયની સ્ત્રીઓ કાચના ટુકડા અને રંગોથી ભૌમિતિક આકૃતિઓ બનાવીને ઘરની બહારની દિવાલો સજાવે છે. આ કલા ખાલી ઘર ઉપર નહીં પણ ભરતકામ એટલે એમ્બ્રોઇડરીમાં પણ જોવા મળે છે. મેઘવાલ એમ્બ્રોઇડરી આપણા ઇન્ડિયન ટેક્સટાઇલમાં ખૂબ જ ફેમસ છે. આ સમુદાયના લોકો એમ્બ્રોઇડરી અને વણાટ માટે ખૂબ વખણાય છે અને એવું કહેવાય છે કે એમના દર એક ઘરમાં એક ચરખો તો હોય જ, કારણ કે મોટા ભાગના લોકો વણાટથી જ ઘર ચલાવતા હતા. આ એમ્બ્રોઇડરી ખાલી બિઝનેસ નહીં પણ એમના કલ્ચરનો બી ભાગ છે. જ્યારે મેં આ વિશે ચેનારામજી સાથે વાત કરી ત્યારે એમણે આ કલા વિશે વિસ્તારપૂર્વક સમજાયું. ચાલો સાંભળીએ એમના જ અવાજમાં. ये हजारों वर्ष पुराना है. कपड़े मतलब वो कच्चा रुई लाते, उस तितली से लगा के एक डोरा बनाते थे, छोटा सा धागा, उस धागा को भेगा करते. बाद में फिर वो लकड़े की पट्टिया वाला वो होता था संसा, उसे लगा के टपा टप तार से तार लगा के फिर उस तार से उसका कपड़ा बनते थे, जिन्हें कहते हैं रेजा. उसके हमारे भाषा में रेजा बोलते हैं. આ રેઝાના કાપડને જે લોકો રંગે છે એમને કહેવાય છે રંગરેઝ. હાલમાં પણ આ બંને કમ્યુનિટીઝ ભારત અને પાકિસ્તાનમાં ઘણી બધી જગ્યાએ જોડે કામ કરે છે. આપણે કપડાની વાત કરતા હોઈએ, એમ્બ્રોઇડરીની વાત કરતા હોઈએ અને લગ્નના કપડાની વાત ના કરીએ તો કેમનું ચાલે? એમ બી આ લગ્નની સિઝન ચાલી રહી છે. સોશિયલ મીડિયા ખોલો તો એમાં ખાલી લગ્ન અને એમના ભારે ભરકમ ડ્રેસીસ જ જોવા મળે છે. તો મેઘવાલોમાં લગ્નના કપડામાં પણ કંઈક ખાસ છે. ચાલો જાણીએ ચેનારામજીથી. लड़के वाले के वो कपड़े लेके जाते थे, कपड़ा इतना भारी होते थे पहले के ज़माने में कि खाली उनका घाघरा भी ऐसे खाली खड़ा कर दे तो वही खड़ा रह जाता था बिना पहने हुए. और 3 तरह की ओढ़नी ओढ़ती थी वो लड़की जो जिसकी शादी हो वो. આ પ્રકારના કપડાં હવે ભાગ્યે જ જોવા મળે છે. મેઘવાલોમાં લગ્નની વિધિ પણ અલગ હોય છે. આ લગ્નમાં મોબન બેસવું, કન્યાવડા, તોરણ બાંધવો એવી ઘણી બધી વિધિઓ છે. ચાલો એમના પાસેથી જ જાણીએ. परिवार वाले वो लड़की के घर जाते थे, वहाँ से ककूपत्री लिख के सावा लिख के लेके आ जाते थे. फिर घर लाके एक पार्ट पे बिठा देते थे और उसके दूसरे दिन ही गणेश यानी विनायक लेने कुम्हार के घर जाते, कच्ची मिट्टी का वो विनायक बना के वहाँ से अपने घर लाके स्थापना करते. 1-2 दिन की बंदोली होती थी, इसमें जो लिखा हुआ होता है जो वहाँ लड़की वाले लिख के देते हैं, वहाँ से उसके जो भी ब्राह्मण है कुछ भी किसी को भी से लिखा लेते और वहाँ से लिख के देते थे. पहले इतना पढ़ा लिखा नहीं था तो आज तो कोई भी लिख सकता है. बाद में घर आके बच्चे को पाठ बिठाना और फिर 3-4 दिन के बाद में उसकी बारात जाना. उस रात जब बारात आ जाती है तब उनके घर वाले सब उपवास रखते हैं, जिसको कन्यावड़ा बोलते हैं मारवाड़ी में. हमारे समाज में कन्यावड़ा बोलते हैं. और वो कन्यावड़ा रखते हैं तब तक कि मोबन, तोरण और लड़की की विदाई ना हुए तब तक वो खाना नहीं खाते. અચ્છા, તો આ ઉપવાસ ક્યાર સુધી રાખવામાં આવે છે? वो उपवास जब लड़की की विदाई हो जाती है शाम को, विदाई के बाद में उनको ऐसा लगता है कि मेरे गांव के बाहर निकलने के कॉर्नर पे ऐसे बड़े बड़े 2 थंब लगाओ, जिसको हम बोलते हैं टोडा, यानी कि हमारा हक गांव, ये हमारा गांव है. इसके बाद में हमारा सब जंगल आ जाता है, खेती बाड़ी आ जाती है. तो वो टोडा को पूरा करने के बाद में ही कि वो लड़की मेरे ये दोनों टोडा से बाहर गई तभी वो उपवास खोलते. उस उपवास में ये लोग देसी घी के सूरमा, अभी तो सब पकवान बना लेते तो पकवान खाते लोग. बाकी पुराने ज़माने में एक ही सिस्टम था कि 2 रोटी को लेके मसल के देसी घी का सूरमा बना के उसे उपवास खोलते. તો આ કન્યાવડા ઉપવાસ રાખવા પાછળ શું મહત્વ છે? इसके अंदर ऐसे बोलता है कि लड़की यानी कि एक गाय ने लड़की दोनों एक इतनी पवित्र वस्तु है और अपने लिए धर्म है ये कि लड़की अपने घर से विदाई होती है तब ऐसा लगता है कि आज 18 साल की होगी, 20 साल की होगी, मेरी बच्ची जा रही है, मैंने इतनी बड़ी किया हूँ, तो इसके पीछे उनका जीवन सुखी रहे, कभी ज़िंदगी में भूखा ना रहे. और उनका महत्व के लिए इनके माँ बाप और उसके भाई भाभी हुए हैं, इसके कोई मासी है, उसका जो प्रेमी खास रिश्ता है वो लोग भूखे रहते हैं इसके हिसाब से कि मेरी बच्ची कभी ज़िंदगी में ऐसा समय नहीं आवे. पहले के ज़माने में बोलते थे दुष्काल पड़ जाते थे, बरसात ज़्यादा होने से नुकसान हो जाते थे, बच्चे बाहर कमाने जाना पड़ता था, घर के कहीं खेतों में कहीं किसी घर पे मजदूरी नहीं मिलती थी, तो ऐसे भूख मरे के हिसाब से ये परंपरा पहले से आई हुई है कि कभी मेरी बच्ची को ऐसा ना हुए. उनके पीछे ये धर्म पूर्ण करते हैं और बोलते हैं कि लक्ष्मी का रूप है, तो विदाई के बाद में भी हमारे घर में भी सुख शांति रहे, उनके घर में भी ऐसा कभी टाइम ना आवे, इसके लिए वो धर्म निकालता है. और ये बहुत बड़ा धर्म मानते हैं, यानी कि हर उपवास से बहुत बड़ा धर्म मानते हैं.
કન્યાવડા ઉપવાસથી એ સમજાય છે કે મેઘવાલ સમુદાયે પૂર અને દુકાળ બંને જોયા છે અને એના લીધે છોકરીને ક્યારેય ખાવાની તકલીફ ના પડે એના માટે આ વિધિ છે. હવે લગ્નની વિધિઓમાં નેક્સ્ટ આવે છે મોબણ બેસવું. જાણીએ એ કઈ રીતે થાય. जब बारात उनके घर के आजू बाजू पहुंच गई तब मोबड़ की तैयारी होती है. मोबड़ एक ऐसा सिस्टम होता है कि लकड़े का बना हुआ होता है जिसके ऊपर 4 स्वस्तिक जैसे बनाया हुआ होता है. चारों पे एक एक कलश रखता है 4 कोने पे और ऊपर जो किली मार के चकलियों का छीन लगा के रखते हैं जिसे मोबड़ बोलते हैं. वो अपने आंगन में खड़ा करते. આપણે એ તો સમજ્યું કે મોબણ હોય છે શું. હવે જાણીએ કે એની વિધિ કઈ રીતે હોય છે. मोबड़ की तैयारी ऐसी होती है कि मतलब लड़की के माँ बाप वो दोनों मोर बांधते हैं. इस साइड में मोर बांधते हैं ऐसे लटकनिया वाला चमक वाला. दोनों मालाएं पहनते और दोनों एक दूसरे तलवार लेते वो इंसान और दोनों को सेड़ा सेड़ी होता है. सेड़ा पकड़ा हुआ होता है वो और को भी बंधा हुआ. अपनी कुल देवी अपने घर के अंदर बैठी हुई उनके वहाँ से नाले पानी और वहाँ से नमन करके फिर मोबड़ जा खड़ा करता है घर के शौक के अंदर. शौक होता है जैसे उसके अंदर वो मोबड़ के पास में बैठते दोनों और वहाँ पे जो भी उनका वो धूप है भी वगैरह करना और फिर वहाँ से धर्मपूर्ण बोल के फिर दोनों खड़े हो जाते तो बोलते मोबड़ बैठे, जिसे हम बोलते मोबड़ बैठे. और वो मोबड़ की विधि पूरी होने के बाद में वर राजा को अपने घर पे बुलाते शादी के लिए यानी कि पनीजवा वास्ते मारवाड़ी में. तो वो उसके बाद में वो तोरण का विधि होती है. जो तोरण में विधि वो आपको बताया कि जैसे वर राजा आता है खाली एक अकेला खड़े रहने के लिए एक लकड़े की वो बनाता है हम जिसे मौसी बोलते हैं. उसके ऊपर खड़े रहता है और बाद में जाल की डाली यानी कि गुजराती में वरकली बोलते हैं. हमारे राजस्थानी में जाल बोलते हैं. हिंदी में मालूम नहीं मेरे को झाड़ का नाम. उसकी बड़ी सी डाली लाता है और तलवार होती है. दोनों को साथ में रख के तोरण पे टच करवाते 2 बार 5 बार 7 बार इस तरह से. और फिर बाद में अपने लड़की के घर के अंदर एंट्री होती है उसकी. और उसके बाद में अंदर जाने के बाद में जहाँ वो वर राजा बैठा है और फिर लड़की को लाता है वो उनको बैठाता है. उससे पहले एक बैल जोतने का जो गाड़े का एक जौड़ा होता है दोनों बैलों के कंधे पे रहता है जौड़ा. वो दोनों के पैर के नीचे रख देता है और उनको वहाँ बिठाता है. એવું માનવામાં આવે છે જેમ બળદ એની ગાડીને ખેંચે છે એમ જ પતિ પત્નીએ જોડે જીવનની ગાડી ચલાવવી જોઈએ અને બધી મુશ્કેલીઓમાં જોડે મહેનત કરીને આગળ વધવું જોઈએ. હવે આના પછીની વિધિ વિશે જાણીએ. फिर उन दोनों को खड़ा करता है जो फेरे के लिए. फेरा सबसे पहले लड़की घूमती है आगे 2. लड़की 2 फेरा करेगी. फिर बाद में लड़की के बाद में लड़के का नंबर आएगा. सबसे पहला लड़की आगे फरेगी बाद में लड़के का नंबर आता है. 7 होता है तो 2 फेरा पहले लड़की का ही आगे रहेगा और 5 हो गया तो 3 फेरा लड़का. 2 फेरा घूमने के बाद में लड़का आगे आएगा. इस तरह करके वो वहाँ का घर के अंदर का कार्यक्रम पूरा होता है. बाद में वहाँ से शादी करके बाहर निकलते जहाँ भी बराती का उतारा होता है ना वहाँ बराती का उतारा होता है वहाँ तक वह लड़की वो ले जाते. फिर बरातियों के साथ में जो आए हुए होते हैं हमारे कोई भी भैंसे आते हैं तो उनमें से उसी गांव के कोई भी उसके उम्र का हुआ है कि उससे बड़ा हुआ है तो लड़की को पतासे सिंगोड़े मूंगफली और नारियल और 125 रुपया डालते थे. पहले हम 125 रुपया बहुत होता है. आज तो 500 भी डाल देते. पहले 125 रुपया डालते थे. उसके ऐसे खोड़े में डाल देते और उसके ऊपर माथा पे हाथ देते. जब शादी होने के बाद बाप से घर से विदाई होती तो उसके ससुराल में उसका बाप बन के रहेगा वो कि मैं इसका भाई हूँ कि मैं इसका बाप हूँ ये मेरी बेटी है. ऐसे करते उसको बोलते हैं खोड़ा भराया. तब वो खोड़ा भरा देते हैं तो बारात की उतारा यानी वहाँ से वापस वो लड़की अपने घर आती है. और घर आने के बाद में वो सब लड़की के जो भी रिश्तेदार होते हैं सब मिलते हैं उनको. और बाद में घंटा भर बाद में उसके वो बाहर के जो देवी देवता होते हैं पूरा गांव के अंदर जितने भी हर मंदिर के अंदर जाके नारियल बधारने का और उनकी पूजा करके फिर शाम को 7-8 बजे
जैसा टाइम नक्की है वो टाइम पे उनको विदाई कर देते लड़की को। આપણે મેઘવાલ સમાજના લગ્નની વિધિઓ વિશે જાણ્યું. હવે વિદાય બાદ છોકરાના ઘરે ગયા પછીની પરંપરાઓ વિશે જાણીએ. फिर वहाँ से शादी हो गई, फिर वो लड़की वाले सब उसको विदाई करते थे और वहाँ से फिर लड़के और पूरी बारात यहाँ वहाँ आते थे घर पे। और इसके बाद में जो भी पीछे का कार्यक्रम है, दूसरे दिन गांव के अंदर मंदिर जाके नाले बधाड़ना है, पूजा करना है, वो एक दिन का वो होता था। फिर वो सास के अंदर वो चांदी की अंगूठी डाल के दोनों लड़का लड़की को रमते थे, एक दूसरे को उठाते थे, वो कौन जल्दी उठाया कौन नहीं उठाया वो होता था। फिर लड़का लड़की पे ऐसे रूह तोड़ के डालता था और वो बीन के रूह वापस भेगा करने का वो ऐसा सिस्टम था। એવું માનવામાં આવે છે કે આ બધી પરંપરાઓના અલગ અલગ મહત્વ છે જે એક દાંપત્ય જીવન માટે જરૂરી છે. અત્યારે આપણે જાણ્યું મેઘવાલ સમુદાયના લગ્નની વિધિઓ વિશે. હવે આપણે વાત કરીશું એમના સમુદાયમાં થતી મૃત્યુ પછીની પરંપરાઓ અને વિધિઓ વિશે. यहाँ से पूरी वेशभूषा होती है, उसको जैसे पैंट शर्ट पहनते, पैंट शर्ट पहना हुआ होता है, धोती पैजामा पहना हुआ धोती होता है। गांव ले जाने के बाद में गांव वाले सब भेगे हो जाते हैं, वहाँ पे जो भी रोना धोना सब होता है वो। और भेगे होने के बाद में हम दुकान पे जाते हैं, वहाँ से एक सफ़ेद वस्त्र लाते, जिस वस्त्र को उसको ओढ़ाने के लिए भी वही काम आता है और उसको पहनाने के लिए वही काम आता है, जो दर्जी से नहीं सिलाते, हम खुद सिल देते और खुद सी के वो मरे हुए इंसान को वो खाली इतना तक घोड़ों तक उसका वाइट कपड़े का वो पहनाते हैं, ओढ़ाने का भी वाइट वो होता है। और जब शमशान में ले जाते हैं तो उसको जो भी माप के हिसाब से वो खाड़ा होता है, वो खोदने के बाद में उसको दफन विधि करते हैं। दफन विधि करने के लिए हम जब खड्डे में आदमी सुला देते हैं तब ऊपर से मिट्टी, कोई भी ऐसा इंसान होता है जो जैसे आपको मैंने पहले बताया था गुरु भेग के अपना गौ भेग का ऐसा इंसान होता है, वो गायत्री पढ़ता है इसके ऊपर, फिर बाद में इसके ऊपर मिट्टी डाला जाता है। बाद में आने के बाद में तो वो घर पे आते हैं, घर पे आके बाद में जो भी बाहर से आए हुए हैं, पहले के ज़माने में तो लोग बोलते थे कि नशा वाली चीज़ें जो अफीम वगैरह वो लेते था तो बोले सुगुन होता था। अभी तो वो सिस्टम है नहीं, तो खाटी छाछ और मक्की का दलिया होता है, मक्की का, जिसकी थूली बना के तैयार रखते औरतें, जब दफनाना जाते तब वो थूली बना के तैयार रखते, उसको पीस के मतलब वो मिक्स करके और अपने थाली में, कोई वाट की कटोरी में नहीं देते, अभी भी थाली में देते हैं। थाली में एक ही थाली में लेते और एक थाली में 4-5 जना थोड़ा भले थोड़ा भी है, एक घूट भी भले मुंह पे अड़ाओ, मगर एक थाली में अड़ाए, वो भाई को दिया, वो भाई को दिया। एक थाली में 4-5 जना, 8-10 थाली में 50-100-200 जना होते भी 8-10 थाली में पूरे बच जाते हैं। उसके बाद में दूर के होते हैं, उसको सब्जी रोटी जो भी घर से वहाँ बनाते नहीं, आजू बाजू वाला ला के देता है, वो खाते हैं। આના વિશે તો જાણી લીધું. હવે 12માની વિધિ વિશે જાણીએ. जिस दिन 12वां होता है उस दिन शाम को सफ़ेद जो लोग वो मर जाता है उसका माथे पे बंधा हुआ होता है अंगोसिया। 12 दिन के बाद में उसका 12वां होता है, 12वां दिन 12वां होता है। तो दोपहर को 2-3 बजे 4 बजे तक ये जब खाना पीना का एक कार्यक्रम पच जाता है, तभी बैठ के सब लोगों ने, उनके परिवार वाले जितने भी होते हैं, तो उनके परिवार वाले जितने भी आदमी होते हैं, उनके सासवे वो लोग उनके पागड़े लेके आते हैं। पोतिया अधिकतर लाल कलर का, पीला कलर का अधिकतर होता है। अभी तो फैशन है तो सुंदड़ी भी लाते हैं, अभी तो कई नवरंगा भी लाते हैं, अलग अलग लाते हैं। अभी तो पहला खास करके पीला या लाल, ये दो कलर के ज़्यादा रहते थे। तो वो वाइट वाला कपड़ा ले लेते और दूसरा लोग खड़ा होकर उसके माथे पे बांध देते हैं ऊंधा सीधा, और फिर वो बांधने के बाद में सब पूरा परिवार को बांध जाते माथे पे। तब जाके वो सब खड़े होकर हाथ जोड़ के, पूरे जो बैठे महानुभाव जो भी पंचगण, उनको हाथ जोड़ के राम राम करता है और फिर बैठता है। उस दिन से वो उसका वो शोक उतर जाता है, यानी कि जिस दिन मरा और वो वाइट कपड़ा रखा ना, वो उस दिन 12वें के दिन उतार देते। મેઘવાલોના કલ્ચર કોઈ જગ્યાએ ડોક્યુમેન્ટ કરેલા નથી અને આ બધી જ વસ્તુઓ અને રિવાજો એમના હેરિટેજનો ખૂબ મહત્વનો ભાગ છે. એમના વિશે આટલું જ નથી, એમના સંગીત અને સાધુ સંતોનો પણ વિશાળ ઇતિહાસ છે. આ વિશે જાણીશું આવતી પોડકાસ્ટમાં.
અને ત્યાં સુધી જો તમારી કોઈ મેઘવાલ સાથે મુલાકાત થાય તો એમને પ્રશ્નો પૂછજો. એમના ઇતિહાસ વિશે કંઈક ના કંઈક નવું જાણવા તો મળી જ જશે. રેડિયો નઝરિયા 107.8 આવાઝ અમારી પરથી હું છું આફતાબ.